Hello friends, welcome. I am Amit Tyagi, chemistry classes. Today our topic quantum numbers and types. First of all, what is quantum numbers? Quantum numbers in a atomic structure, they are described the energy level, sub energy level, orientation and spin of electron and atoms. It means क्वांटम नंबर्स वे नंबर्स हैं जो किसी भी एटम्स के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल, उसके सब एनर्जी लेवल, उसकी ओरिएंटेशन और उसके स्पिन को रिगार्डिंग हमें डिस्क्राइब करती हैं. दे गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ऑल दिस मीन्स द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स and the orientation of an electron and magnetic momentum, and they is magnetic momentum of an electrons. तो क्वांटम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एटम्स में इन सभी के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है. These are four types of quantum numbers. Quantum numbers are four types. Quantum numbers four types की होती हैं. First is principal quantum number. Second is azimuthal quantum number. Azimuthal quantum numbers. Third is magnetic quantum numbers, and fourth is spin quantum numbers. Quantum numbers are four types. Number one है principal quantum numbers, number two azimuthal quantum number, and number three magnetic quantum numbers, and number four spin quantum numbers. अब हम एक एक को वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं. यस, first is principal quantum number. Principal quantum number. Principal quantum number is represented by small n. Principal quantum numbers को हम small n से represent करते हैं. What is principal quantum numbers? Principal quantum numbers is describe the electrons पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी एटम्स में पोजीशन को जो डिस्क्राइब करती है, देन दे आर कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स. मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है उसे रिप्रेजेंट एन से करते हैं. इट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. ओके, दे आर डिस्क्राइब द शेल, नंबर ऑफ शेल. इट मीन्स ये नंबर ऑफ सेल को डिस्क्राइब करती है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस नंबर ऑफ शेल में प्रेजेंट होता है. तो n में भी पॉसिबल वैल्यूज, जो पॉसिबल वैल्यूज हमारी होंगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, स्मॉल n, दे आर 1 2 3 4 एक्सेट्रा. इट मीन्स k, l, m and n. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स इज रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल. हम KLMN को या 1 2 3 4 को एनर्जी लेवल ही कहते हैं. एनर्जी लेवल. It means principal quantum numbers, they are describe the position of an electron. It means they are describe the energy level of an electron in an atoms. It may be value 1, 2, 3, K, L, M, N, etc. Maximum
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फॉर n, किसी भी n के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर होती है दे आर कैलकुलेटेड बाय 2n स्क्वायर, वो 2n स्क्वायर से कैलकुलेटेड की जा सकती है। इफ n is equal to 1 then the number of electron is equal to 2, n is equal to 2, तो number of electron is equal to 2 into 2 the power 2 is equal to 8, n is equal to 3 then the number of electrons 2 into 3 the power 3 is equal to 18। It means if n की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो एनर्जी आपके पास नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, n is equal to 2 तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, एंड n is equal to 3 देन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बाद में एज़ोमेथियल क्वांटम नंबर्स। एज़ोमेथियल क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर। व्हाट इज एज़ोमेथियल क्वांटम नंबर्स? एज़ोमेथियल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m। Which quantum numbers? They are describe the sub energy level. They are describe sub energy level. They are represent the sub energy level and shape of the orbitals. ये shape of the orbitals होगी, shape of orbital को represent करती है। They are depend n value. They are azimuthal quantum number is L. It is represent L. They represent the sub energy level. They represent the shape of the orbital and they depends n value. So L values depend the n values. It have the value L value is n minus 1 value. L वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है n माइनस 1 की वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज दे डिपेंड द n वैल्यूज। कैसे स्टूडेंट्स? n एंड l, इट मींस अगर हम बात करते हैं कि n की वैल्यू 1 है देन n वैल्यू इज n माइनस 1, इट मींस 1 माइनस 1 इट मींस 0। n इज इक्वल टू 2 देन l वैल्यू 2 minus 1 it means 1, 0 and 1. n is equal to 3 then the L values 0, 1 and 2. हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऑर्बिटल नोटेशन। अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, हमने कहा है कि दे इज शेप ऑफ द ऑर्बिटल नोटेशन, तो देन इट हैव द 1, first cell have the 1 orbital 1s and second cell have the 2s and 2p orbital, 2s and 2p orbital, and third cell have the 2s 2p 3s 3s 3p 3d orbitals, 3d orbital. n is equal to 4 then the possible value 0, 1, 2 and 3 it have the 4s 4p 4d and 4f। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, azimuthal quantum number is represented by L. They are describe the sub energy level, shape of the orbitals and these value are depend n values. It have the value calculated by the n minus 1. It means L की जो वैल्यू होती हैं वो n minus 1 तक होती हैं। अगर हमारे पास n इक्वल टू 1 है तो हमारी जो L की वैल्यू होगी वो 0 पॉसिबल होगी, n इक्वल टू 2 है तो L की 2 वैल्यू पॉसिबल होगी, n इक्वल टू 3 है तो L की 3 वैल्यू पॉसिबल होंगी, n इक्वल टू 4 है तो L की 4 वैल्यू पॉसिबल होंगी। इट मींस n इक्वल टू जितना नंबर आएगा n इक्वल टू then n is equal to L value,
सेम नंबर ऑफ n, जितना नंबर ऑफ n होगा उतनी ही l की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, बट वो एक वैल्यू लेसर देन होगी बिकॉज 0 इज अ फर्स्ट वैल्यू। ओके, जैसे n में 4 वैल्यू है, 4 नंबर आया है तो 4 वैल्यूज तो पॉसिबल है बट वो इंक्लूड विद 0 होंगी, और उनमें ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो क्या क्या होगा। 0 के लिए इट मींस फर्स्ट सेल में ओनली 1s होगा, सेकंड सेल में 2s एंड 2p होगी, 3 सेल में 3s 3p एंड 3d होगी, एंड 4 में 4s 4p 4d एंड 4f प्रेजेंट होगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, एजोमेट्रिक क्वांटम नंबर्स के बाद में हम नेक्स्ट अपना क्वांटम नंबर्स देखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स दे आर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो होता है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट एक्सप्लेन द ऑर्बिटल ऑफ इन सब शेल। इट मीन्स किसी भी शेल को रिप्रेजेंट करती है n और सब शेल को रिप्रेजेंट करता है l, और सब शेल में ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है m। तो इट इज रिप्रेजेंट बाय m एंड दे आर रिप्रेजेंट द सब शेल ऑर्बिटल, सब शेल ऑर्बिटल। They are represent the subshell orbitals. They are explain Zeeman effect. ये Zeeman effect को भी represent करती है। Zeeman effect. It means splitting of electron in spectral lines. कि हमारी जो मैग्नेटिक नेचर है इलेक्ट्रॉन्स की उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटम नंबर्स यूज किया जाता है, देन दे आल्सो नोन एज द m वैल्यू डिपेंड्स l वैल्यू। m वैल्यू जो डिपेंड्स करती हैं वो l वैल्यूज पर डिपेंड करेगी। इट हैव द वैल्यू -l to 0 to पॉजिटिव l। इट मींस m की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हमें -l to 0 to पॉजिटिव l तक जाना होगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको बताता हूं। इफ n is equal to 1 then l is equal to 0 to n minus 1, 0 to n minus 1। इट मींस 0 to 1 minus 1, 0 आपकी वैल्यू होगी, n minus 1 तक आपकी वैल्यू होगी। m वैल्यूज -l to 0 to पॉजिटिव l। इट मींस n इज इक्वल टू 1 है तो हमारी जो वैल्यू होगी l की वैल्यू वो 0 होगी। एक वैल्यू है तो एक ही वैल्यू हमारी होगी, और यहाँ पर हमारी वैल्यू -l। इट मींस l इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो l इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। n इज इक्वल टू 2, अगर n इज इक्वल टू हमारे पास 2 है तो देन l हैव द 2 वैल्यूज एंड विच वैल्यू n में 2 minus 1 1। इट मींस 0 to n minus 1 से जाएगी 0 and 1, एंड यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 to n minus 1, 0 and 1 माइनस n 0 के लिए तो 0 जाएगी, और सेकेंड -1। इट मींस 0 के लिए 0 जाएगी और इसके लिए वैल्यू क्या जाएगी 0 and 1। दोनों के लिए अलग अलग भी लिख सकते हैं आप, ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो 0 के लिए 0 जाएगी और 1 के लिए -1, 0 and पॉजिटिव 1। इट मींस ये पॉसिबल वैल्यू होंगी। देखिए एक बार फिर समझा देता हूँ। n is equal to 1, if n is equal to 1 तो l वैल्यू 0 to n minus 1। इट मींस 0 हो गई और m की वैल्यू 0 हो जाएगी। बट n is equal to 2 तो देन इट हैव 2 पॉसिबल वैल्यू। इट मींस 0 and 2 minus 1, 2 वैल्यू पॉसिबल है l की, एंड m वैल्यू 4 का 0 के लिए 0 जाएगी, एंड 1 की वैल्यू हम माइनस में यहाँ पर रखेंगे तो -1, 0 एंड पॉजिटिव 1। तो ये हमारी वैल्यूज जाती हैं 4m के लिए। तो m is explain the subshell orbitals and the Zeeman effects explain splitting of the electron in spectral lines, and m is represent the
द सबसेल, इट मीन्स आपके पास हमारे पास में S, P, D एंड F, हमारे पास में जो ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिट KLMN होते हैं, ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो SPDF होते हैं, और S जो ऑर्बिटल्स होता है उसका शेप जो होता है ओवल शेप होता है। P में हमारे पास 3 PX, PY एंड PZ, 3 टाइप्स के हमारे पास सबसेल ऑर्बिटल होते हैं। D में हमारे पास 5 होते हैं एंड F में हमारे पास 7 होते हैं। DX, DXY, DYZ, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर हमारे पास 5 होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है? S हैव द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। P हैव द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 एंड D हैव द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 एंड F हैव द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, बिकॉज वन सबसेल ऑर्बिटल हैव द मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, they are represented by small s. Spin quantum numbers is represented by s. They are describe the orientation of an electron. It means spin of a electron. Electron are movement in a subcell are two direction, clockwise direction and the anti-clockwise direction. Electron जो subcell में movement करता है वो 2 टाइप से मूवमेंट कर सकता है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। S have the 2 possible value, plus 1/2 and minus 1/2. It means plus half and minus half. Plus half value for the clockwise direction and the minus half value is anti-clockwise direction. So S value are each electron have one subcell have maximum 2 electron and 1 electron is the spin quantum of the clockwise direction and second electron in the anti-clockwise direction. तो S की जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ होती हैं। हम इसको इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस माइनस 1 हाफ। हम बताते हैं फॉर द S हैव द S ऑर्बिटल आपके पास में है, ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल्स के पास में आपके पास में होता है। तो S हैव द मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 होते हैं, P हैव द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6 होते हैं और D हैव द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके पास में 10 होते हैं एंड F हैव द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। ओके, तो S के लिए अगर हम बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। It means first value is the clockwise plus half and second value is the anti-clockwise in the negative half. तो किसी भी ऑर्बिटल्स SPDF में आपके पास में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन S में पॉसिबल हैं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यू जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओरिएंटेशन कर रहा है इट हैव द पॉजिटिव 1 एंड सेकंड इज द नेगेटिव 1। P have the maximum 6 electron, then they are represented by the PX, PY and PZ. They have 3 maximum, 1 clockwise, second clockwise, third clockwise, 4 anti-clockwise, 5th anti-clockwise and 6 anti-clockwise. It means इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यू पॉजिटिव हाफ हो गई है और 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यू नेगेटिव हाफ हो गई है। Which electron they are clockwise direction which have the values positive 1 half and which electrons, it means first electron, second electron, third electron, 4, 5 and 6, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होगा उसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव 1 हाफ जाएगी और 4, 5 एंड 6 की वैल्यू हमारे लिए नेगेटिव 1 हाफ जाएगी। इसी तरह हमारे पास में D में 5 इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे और 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे एंड F में 7 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। ओके, तो मैंने आज आपको क्वांटम नंबर्स एंड टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। आप इसे अच्छे से नोट से एक्सप्लेन देखें और टेक्स्ट बुक में भी आपको बहुत अच्छे से कराया हुआ है और इसी के बेस पर बिहाफ पर आप NCERT के क्वेश्चंस को सोल्व करें। If you are facing any problems, you are discuss my channel and my WhatsApp number and my personal number. Okay, thank you.